नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भाजपा ने आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे होने के संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया। कर्नाटका के मंत्री जमीर ने आरोपों से किया इनकार, दोषी पाए जाने पर पद छोड़ने की पेशकश की। सीएम सिद्धरामैया ने कमीशन वसूलने का काम एजेंटों को सौंप दिया, भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र। अवैध खनन पाटिल के पत्र को कूड़ेदान में फेंक दे एचडी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। भाजपा ने आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे होने के संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया। आज शहर के विधान परिषद में विपक्षी नेता चलवड़ी नारायण स्वामी के नेतृत्व में यह काला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बीदर जिला भाजपा अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल, विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बिलदाड़े, एमएलसी एमजी मूले, पूर्व एमएलसी रघुनाथ राव मलकापुरे, बूढ़ा के पूर्व अध्यक्ष बाबूवाली, शकुंतला बिलदाड़े सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಕರಾಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಒಂದು ನೆನಪು ಇವತ್ತಿಗೆ 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 1975ರ ಜೂನ್ 25ರಂದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಇರಾನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ದೇಶಗಳು ಒಂದು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಇದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ನಮ್ಮ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂಗತರಾಗಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದಂತ ನಮ್ಮ ಶಿವಶಂಕರ್ ಪರವಳ್ಳಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ, ಶಿವಶಂಕರ್ ಪರವಳ್ಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕಾಗಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧ ಗೆದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ಸೋತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧದ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 1975ರಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು. ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಇದು ಮುಂಬರುವ ಏನ್ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು 25ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಯಾವ ತರ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕಗ್ಗೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಈ ದಿನದಂದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎಲ್ಲರವನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಂತ 21 ತಿಂಗಳು JP ನಾರಾಯಣವರಾಗಲಿ, ವಾಜಪೇಯಿಯವರಾಗಲಿ, ಅಡ್ವಾಣಿಯವರಾಗಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗಲಿ, ಈ ನಮ್ಮ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರಾಗಲಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರವಾಗಿದ್ದ, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು ಬಂದಿದ್ದ, ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನ ಈ ದೇಶದ ಮುಖಂಡರಿಗೆ, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ, ಚಿಂತಕರಿಗೆ ಏನು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಮಾನ್ಯ ಬಂಧುಗಳೇ, 1971ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಯಬರೇಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಮತಿ। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के आवास, अल्पसंख्यक और वक्फ मंत्री बीजर जमीर अहमद खान ने वंचितों के लिए बनाए गए घरों के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार किया। मंगलवार को बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए जमीर ने दावा किया कि यह गरीब आदमी नहीं है जो गरीब के लिए दिए गए पैसे पर जीता है, और घोषणा की कि अगर उनके खिलाफ लगाए गए कोई भी आरोप साबित होते हैं तो वह इस्तीफा दे देंगे। जमीर ने कहा कि गरीबों से इस तरह का पैसा लेना अक्षम्य है। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की हरकतें अक्षम्य हैं और उनके विभाग में इसके लिए कोई जगह नहीं है। उनकी टिप्पणी वरिष्ठ कांग्रेस विधायक बीआर पाटिल द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में आई है, जिन्होंने आवास आवंटन में अनियमितताओं पर चिंता जताई। जमीर ने कहा कि दावों की जांच के लिए औपचारिक जांच शुरू की जाएगी। मंत्री ने कहा अगर कोई दोषी पाया जाता है तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि वह मामले को स्पष्ट करने के लिए पाटिल से व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे। भाजपा ने कांग्रेस विधायक बीआर पाटिल द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र अलंद में आवास विभाग द्वारा मकानों के आवंटन के बारे में लगाए गए आरोपों की न्यायिक जांच की मांग की। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कमीशन वसूलने का काम अपने एजेंटों को सौंप दिया है और ये एजेंट सरकार चला रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए विजेंद्र ने कहा कि राज्य सरकार ने कमीशन लेने के लिए ही हर विभाग में कियोस्क खोल दिए हैं। उन्होंने कहा विधानसभा सचिवालय से लेकर ग्राम पंचायत कार्यालयों तक कोई भी काम बिना पैसे दिए नहीं हो सकता। सरकार कमीशन माफिया का समर्थन कर रही है और सिद्धरामैया जो इन घटनाक्रमों से वाकिफ हैं चुप्पी साधे हुए हैं क्योंकि उन्हें अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचानी है। विजेंद्र ने कहा कुछ कांग्रेस विधायकों के हालिया बयानों ने राज्य सरकार की पोल खोल दी है। केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कथित अवैध खनन अनुमतियों को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और कानून मंत्री एच के पाटिल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पाटिल द्वारा लिखे गए पत्रों को कूड़ेदान में फेंक दिया जाना चाहिए। नई दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा अपने पिछले कार्यकाल के दौरान सिद्धरामैया ने अवैध रूप से 7 खनन कंपनियों को अनुमति दी थी। इस बारे में आपका क्या कहना है श्री एच के पाटिल, उन्होंने तीखे सवाल किए। कुमारस्वामी ने आरोप लगाया पाटिल का पत्र ध्यान भटकाने के लिए जारी किया गया ताकि आवास विभाग में चल रहे कमीशन घोटालों से हो रही शर्मिंदगी से ध्यान हटाया जा सके। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। भाजपा केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य बीएस येडियुरप्पा ने कहा 1975 में आपातकाल लगाने वाली मानसिकता आज भी कांग्रेस पार्टी में जिंदा है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी भले ही गुजर गई हो लेकिन कांग्रेस की मानसिकता आज भी नहीं बदली। हमें आपातकाल के काले दिनों को नहीं भूलना चाहिए। येडियुरप्पा ने बेंगलुरु में सिटीजन फॉर सोशल जस्टिस द्वारा आयोजित 1975 आपातकाल के 50 साल काले दिन नामक कार्यक्रम में बोल रहे थे। येडियुरप्पा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सत्ता में बने रहने के लिए पवित्र संविधान की बलि दे दी थी। उन्होंने कहा न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका सभी को सत्ता में बने रहने के उद्देश्य से अपने कड़े शिकंजे में जकड़ रखा है।
आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए, प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई और न्यायपालिका से उसका स्वायत्तता छीन ली गई। उन्होंने कहा कि सत्ता पर कब्जा करने के उद्देश्य से उनका तानाशाही शासन आज भी आक्रोश पैदा करता है। कांग्रेस विधायक बी.आर. पाटिल की हालिया टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए आरडीपीआर और आईटीबीटी मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि अगर विधायक को कोई शिकायत थी तो वह सार्वजनिक रूप से अपनी बात कहने के बजाय सीएम सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात कर सकते हैं। प्रियांक ने कहा कि पाटिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वह उनकी जुझारूपन और विचारधारा का सम्मान करते हैं। प्रियांक ने कहा, लीक हुई फोन बातचीत में कथित तौर पर पाटिल शामिल थे। अधिकारी ने पाटिल के आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन किया और कहा कि यदि ऐसी कोई चूक साबित हुई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने खुलकर स्वीकार किया कि राज्य सरकार वित्तीय संकट से जूझ रही है। उन्होंने कहा, हमारे पास पैसे नहीं, यह तक कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के पास भी अब पैसा नहीं है। चावल, दाल, तेल, यहाँ तक कि शराब के रूप में सब कुछ आप लोगों को दे दिया है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में आबकारी मंत्री आरबी तिम्मापुर की ओर इशारा किया। सोमवार को बादामी में अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं की नई इमारत का उद्घाटन करने के बाद बोलते हुए मंत्री ने अधिकारियों और नेताओं से बादामी के व्यापक विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए की परियोजना तैयार करने को कहा। राज्य सरकार के पास कोई फंड नहीं है, अब बादामी के विकास के लिए परियोजना को केंद्र को सौंप दिया जाना चाहिए। परमेश्वर ने इस बयान का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि सरकार के पास फंड नहीं। उन्होंने कहा, सरकार के पास विकास के लिए फंड जुटाने के कई सूत्र हैं। दावा किया कि सरकार के पास फंड है, लेकिन कभी कभी फंड जारी करने में समय लग जाता है। केंद्र सरकार ने आम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा की, जिससे कर्नाटक के हजारों किसानों को राहत मिलेगी जो इस वर्ष फसल नुकसान और कीमतों में भारी गिरावट से प्रभावित हुए। केंद्र ने 1616 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत मंजूर की है और राज्य सरकार को इस विपणन वर्ष के लिए 2,50,000 मैट्रिक टन आम खरीदने की अनुमति दी। केंद्र के इस फैसले के बाद केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने केंद्र कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर किसानों की सहायता करने का अनुरोध किया। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भी सोमवार को पीएम मोदी को आम किसानों की सहायता के लिए पत्र लिखा। कुमारस्वामी के पत्र का जवाब देते हुए चौहान ने मंगलवार को आमों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना MIS की घोषणा की। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भाजपा ने आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे होने के संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया। कर्नाटक के मंत्री जमीर ने आरोपों से किया इनकार, दोषी पाए जाने पर पद छोड़ने की पेशकश की। सीएम सिद्धरामैया ने कमीशन वसूलने का काम एजेंटों को सौंप दिया, भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र। अवैध खनन, पाटिल के पत्र को कूड़ेदान में फेंक दे एचडी। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।